स्क्रीन आ रही है? Yeah, just a second. Okay. So, let's begin. So, good evening, everyone. So, we are Team Payload Pending. It's consisting of me, myself, Rudrarka, Ankita Pandit, and Swapnil तुम Gangopadhyay. अपने क्या यूजर वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा सकते हो? तुम अपना वॉल्यूम बढ़ा सकते हो? तुम्हारा आवाज थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है। मेरा हाँ हाँ I can, let's see. हाँ हाँ मैं म्यूट रख रहा हूँ भाई। I'm trying to increase my input volume. Let's see. Is it fine now? Hello. Okay. Okay. So, first, in the previous episode, we had learned what is the APC injections. Okay. So, it's a type of, uh, it's in this field is cybersecurity that we were in researching. And today we're going to be learning about something much more advanced in it. Okay. So, this is the second part of it. So, let's begin. किरिश का सुनने का गाना किरिश का What we have covered so far. So, we have obviously covered what is an APC injection. The asynchronized routines that are queued and executed later inside specific threads. So that's what a APC is. So we know that. Okay. So first there was some fundamentals for it. There was the execution hierarchies where we talked about where the APCs lived in the Windows architecture, the processes, the thread, the procedure, the instructions. The APCs reside at the procedural level, which is why they can hijack the execution flow. Then we had talked about the difference in the user mode and the kernel mode. Okay, and then there was the mechanism and timing for it. So the timing mechanics, we had three types of APCs we had talked about. The types of APCs, which was simple user, early bird, and special user APCs. In the early bird injection, which was the sneaky one, and much more advanced one, where the code executed happens in a suspended process before the normal startup sequence even began. Okay, and then there were also learn about the EDR timings. This is where the early bird mattered. Early execution happens before most user EDR hooks are even active. So that was our foundation. Now let's see the we know that the what, the where, and when of the APCs. So now let's see the fundamentals in place, which where when we are going to move on to a more advanced technique. But this technique will require a few things to know in advance. So let's see these prerequisites. Okay, the first thing that comes in our prerequisites is the deadlock theory. We have heard this term a lot, so but there is a misconception for it. A deadlock does not mean that the system has crashed. It means the system gets stuck. It freezes, unable to make progress. So let's understand why this happens and how to identify it. So let's get with an analogy. On the left side, you can see it's a washing machine, and now let's imagine you're in a hostel with one washing machine. The machine is running, so the door will be closed and doing its job. Now let's say some roommate of yours or some other dorm comes here and tries to press the machine to start. He's waiting with his clothes to put it inside. The system already is running. The system records as an invalid request. You're asking to start something that's already busy. So what happens? Perpetual waiting. The machine can't start because it's already running and locked. The person can't use it because they can't override the current operation. You're stuck in a limbo. So this is the deadlock in its simplest form. Just now, on the right side, you can see the deadlock in operating systems. Something called known as the resource stagnation. This is where the progress stops before when a resource is requested, again before it is released. So the conditions for it,
There are four necessary conditions for it. One is the mutual exclusion. Resource can only be held by one process at a time. Okay. Hold and wait. A process holds at least one resource while waiting for the others. 3. No preemption. Resource cannot be forcefully taken away. And 4. A circular wait. A circular chain exists where process 1 waits for process 2, which waits for process 3, which waits back for process 1, and then it becomes a loop with no exit. So here's the critical point. Here's what matters. When for all conditions exist together, deadlock occurs. But remove one, just one, when we can break the deadlock. But what's the bottom line? Bottom line is that deadlock causes a freeze, not a crash. Your system hangs, becomes responsive, but doesn't blue screen. Processes are alive but paralyzed, waiting forever for resources that will never become available. So, so let's see about its flow. Deadlock risk in special user APCs. So now we're back into APCs again. So this slide will explain how a special user APC is delivered and why the delivery path can cause a deadlock. Okay. We'll first walk through the return to user flowchart on the left. So let's see the flowchart. First of all, you can see there is a user mode here. That's doing a system call. Okay, the thread is initially running in the user mode, and at some point it makes a system call. This will cause the transition into the kernel mode. So what's happening in the kernel mode? In the kernel mode, the operating system performs the requested service. For example, the file I/O, or the memory operations, or synchronization. Next, it will do a return to user check. Now, as the system call completes and the thread is about to return to the user mode, the kernel performs an important check. Here's a decision comes. Special user APC, does it exist? The kernel checks whether the special user APC is queued for this thread. This checks happens during the return to user transition, but not while the thread is freely executing the user code. So what's the two cases? If no, then there is no APC's user existing in there. The execution simply returns to user mode and the thread continues normally. If yes, the special user APC does exist. The APC is executed immediately before the normal user mode execution resumes. And this is critical because the APC runs in the context of the same thread. It runs before the thread can regain its control. On the right side, you can see it's much more shortened process. Okay, there's one thing to add here, that is the white causing a deadlock. Okay, so in short, there was special use APCs does run early and they run inside the same thread, and this is why they causes a deadlock. Okay, they touch the user mode resources. Now we're coming to a new thing called the IRQL. So in Windows operating system, this thing called the IRQL is basically interrupt request level, and it has a hierarchy. Why? Because it determines the priority of tasks executing in the kernel mode. Now, controlling which task can interrupt the other is others. The fundamental rule is that a processor can only be interrupted by a request of a higher IRQL, and a thread running at a higher IRQL will not be interrupted by a lower IRQL. It's like a hierarchy in a staircase. Like the top part can be cannot be interrupted by something lower. The lower can be interrupted by something higher. So what's the standard hierarchy? Lowest to highest. First is the passive level, the level 0, the lowest IRQL. Normal thread scheduling and user mode applications will be running here, and page faults are allowed here, meaning paged memory can be accessed. The next level that comes is the APC level 1. This is for used for the asynchronous procedural calls. This is where the I/O completions happens, and the page faults are allowed here, but thread schedulers is masked off.
dispatch level, second level, used for deferred procedural calls or DPCs, and thread scheduling. Crucially, no page faults are allowed here because the paging mechanism requires a lower level RQL, and this can cause a system crash, the BSOD. Everyone knows it as the blue screen of death. So it happens because the invalid memory is accessed. Next is the device IRQL or DIRQL. This interrupts from hardware devices. These are above, of course, dispatch level and vary based on the device. The highest level we got the high level, used by the kernel for critical tasks such as bug checks, BSOD, or stopping all processors. So now we knew some terms from this slide. So what's the terms? First is page faults. In Windows, page faults occurs when the running program attempts to access data or code in its virtual address space. It is currently not loaded into the physical RAM. That's a page fault. So in the first two hierarchy levels, we saw it was allowed. But in the next ones, we can see it's not there. In the I/O completions, especially input and output completion ports, or also called the IOCP, this one is a high performance Windows API mechanism managing multiple asynchronous I/O requests. That's it. Also, what's masking? This one a processor is running at a given IRQL, but all interrupts at that level or lower are blocked. The concept of a hierarchy basically. So next, how do we map this to our APCs? Alright, so here you can see that, okay, let's say something. All APCs here, except any type of kernel or be it normal or special, will run in the passive level, which is the lowest level of IRQL. Okay, so we can start off with the APC injection, the user APC injection. In the user APC injection, simple user APCs trigger on alertable waits. We know that. The edge case here, they never fire if the thread never enters an alertable state. True. The early bird APCs fire at the user mode transition, getting threads early in the life cycle. Special user APCs trigger on kernel to user returns, but they might get stuck in kernel mode if something goes wrong. The new type which will be running is the early cascade injection, which will fire during process initialization but cannot disrupt the chain. So the kernel types we got the normal kernel APC and the special kernel APCs. The normal kernel used for thread management blocked by critical regions or any IRQL APC above APC level. This is why I said the be it special or normal, it will run at the passive level. Anything above that will not. Special kernel APCs designed for I/O completion, which is only blocked at the dispatch level or higher, giving them more execution opportunities. And then there is the edge cases. The three critical edge cases to remember was the if IRQL exceeded the dispatch level, APC delivery will fail entirely, and if there was no user mode return path, user APCs will never execute. And if there's no alertable wait, simple user APCs will never fire. So now that you know the prerequisites that you need to know for what's coming next. So let's uh, wait for the next surprise, which I will be passing over to Ankita. So, good evening, people. We will start with early cascade injection. Okay. And before we dive deep into the attacker's flow and how she is compromising the normal process, we must go through some prerequisites. Okay. And the prerequisites are process creation, importance of LDR initialized thunk function, and shim. So let's start with the process initialization. You see, in the process initialization, at first the process is created in user mode where create process request arrives. Okay,
Now a system call switches to kernel mode. In kernel mode, initial thread is created and thread context has been set up. Now we again switch from kernel mode to user mode. In user mode, we come across the very important function LDR initialize thunk, which sets up special memory region MR data. And further on, we will understand what is MR data. Okay, so we also map DLL into the process. Then we move towards the MR data section, where two key components of the shim engine, GShims enabled Boolean flag and the GPFNAC DLL loaded. Basically, it contains an encoder pointer. We will discuss about that as well. And in the end, NT test alert checks if there is any queued APC, and then NT continue shifts control to the main method. This is the simplified skeleton of process initialization. All right, let's move to the next slide. Here is the LDR initialize thunk algorithm. Okay, we must understand that LDR initialize thunk function is a very big and complex function, so we are not going to discuss everything about it. Only the significant part, which is relevant to the attack, will be discussed here. So, what are the significant parts? MR data section. Now, before I discuss that with you, we must locate where is MR data section located. Can you kindly zoom in? Oh, I told you to zoom in. Yeah, ऊपर जा. Yeah, here we can see that just at the beginning there is NTDL LDR initialize MR data section. Okay, and then scroll down a bit. There is the shims enabled flag, which is located in the NTDLL. And you can also see that there is GPFNAC DLL loaded function, which is nothing but a callback pointer. Once I have located that, now let's discuss the functions and the roles of it. Move to the next slide. So, what is shim engine? We are hearing this term a lot. Shim engine actually helps us to run older applications on window. It modifies API and ensures that we are doing the prior mentioned thing. It has certain key components which we are blabbering about since the start of this early cascade injection. GPFNAC DLL loaded function. Now it is a callback pointer. Okay. Now I would like to show you what a callback pointer is, and so for that I need to wait a second. I will be presenting now. So here you can see this is an encoder pointer. Okay, and this is the like उस कोड के उस फंक्शन के अंदर एक्चुअली में यही कोड लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये दिस इज द सेंटर ऑफ अटेंशन. ये पॉइंटर वैल्यू जो है ना, इसी के साथ अटैकर छेड़छाड़ करता है और उसके बाद वो अपना काम करवाता है, ठीक है? तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन द अटैकर्स फ्लो कि किस तरह से वो इसको जेपरडाइज कर रहा है, ठीक है? रूडी, वेयर आर यू? यस, वेयर इज द स्लाइड? ओके, और जी शिम्स अनेबल्ड क्या है? ये बस एक नॉर्मल सा फ्लैग है, ठीक है? इट्स अ बूलियन फ्लैग जिसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू एक्चुअली 0 ही रहता है।
ओके, अब हम लोग आगे जाते हैं। तो जब प्रोसेस क्रिएट होता है ना, तो दिस इज़ द नॉर्मल फ्लो, ठीक है? gshim's enable का जो फ्लैग रहता है वो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉल्स रहता है, इसीलिए वी टेक दिस ब्रांच। बट अटैकर हैज़ अ डिफरेंट मोटिव कि हम प्रोसेस क्रिएशन ये वाला ब्रांच लें। अब ये वाला ब्रांच क्यों लें, ये हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। हाँ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अटैकर्स फ्लो में। और अटैकर्स फ्लो जानने से पहले, लाइक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में जाने से पहले, आई विल लाइक टू डिस्कस अ स्टोरी, क्योंकि वो स्टोरी हम लोग को आसान कर देगा। लाइक इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर अस टू मैप थिंग्स डायरेक्टली टू द टेक्निकल टर्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द story. Before I start with the story, you must understand that there are four important parameters. ठीक है, यहाँ इस स्टोरी में 4 किरदार हैं। एक राहुल है, एक ऋषि है, एक ताज़ीन है, बाय द वे ताज़ नेम, ओके, एंड एक अनिल है। तो सबका बैकग्राउंड जानते हैं। अनिल एक बहुत पावरफुल इंसान है, ठीक है? एंड ही इज़ रिलेटेड टू गवर्नमेंट। सो उसको अगर हम लोग मैनिपुलेट करेंगे ना, तो वो हमें गवर्नमेंट के बारे कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ओके, ताज़ीन इज़ अ टेररिस्ट। राहुल अनिल का पर्सनल असिस्टेंट है और ऋषि राहुल का पर्सनल असिस्टेंट है, ठीक है? तो लेट्स और सेटिंग क्या है? सेटिंग एयरपोर्ट है, ठीक है? और एयरपोर्ट में जो मेन पार्ट है वो क्या है? हमारा हेल्प डेस्क। अब ये हेल्प डेस्क क्या करता है? जो भी इंसान एयरपोर्ट्स के या एयरलाइन के न्यू अपडेटेड रूल्स के बारे नहीं जानते हैं, उनको अपडेट किया जाता है ताकि उन लोग आसानी से फ्लाइट में बैठ सकें, ठीक है? और अपना फ्लाइट बोर्ड कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी, ओके? अनिल के पास बहुत पावर है और इसका फ़ायदा 3 जन उठाते हैं, राहुल, ऋषि और आज़ीम, ऑलराइट? राहुल को पता होता है कि अनिल फ्लाइट के लिए 10:30 बजे के लिए निकलने वाला है, तो वो आधा घंटा पहले ही निकल जाता है, ठीक है? और वहाँ पे निकलने के बाद वो एयरपोर्ट में जाता है और वहाँ के स्टाफ से बोलता है कि देखिए, अनिल बाबू तो बहुत बड़े वीआईपी हैं, अभी घंटा बाद आएँगे, आप एक काम कीजिए, आप गेट बंद करके रखिए तब तक। इस आधे घंटे में राहुल 3 काम करता है। ताज़ीन को ऋषि से मिलाता है, अक्वेंटेंस भी तो करवाना पड़ेगा ना, नहीं तो हेल्प कैसे करेंगे? दूसरा काम, स्टाफ को बोलता है कि अनिल आधा घंटा बाद आएगा, तब तक आप गेट बंद करके रखिए। और तीसरा काम जो वो करता है, हेल्प डेस्क पे जाके अनिल का जो नाम है, ठीक है? वो वहाँ पे इंक्लूड कर देता है, लेकिन नंबर किसका देता है? नंबर ऋषि का देता है। अब क्यों देता है, वो जानते हैं। आधा घंटा बाद जब अनिल आता है, ठीक है? तो स्टाफ्स उसको हेल्प डेस्क की तरफ डाइवर्ट करते हैं या डायरेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि चलिए, चलिए आप हेल्प डेस्क की तरफ जाइए, आपका तो नाम वहाँ मेंशन्ड है। अब अनिल गुस्सा हो जाता है, उसको तो जल्दी ही रहता है ना जाने का, क्योंकि उसको गवर्नमेंट से मिलना है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्लाइट। सो ही इज़ फ्यूरियस एज़ वेल एज़ कन्फ्यूज़्ड। वो सोच ही रहा होता है कि ये कौन किया है, तब तक स्टाफ उसको का जो स्टाफ है उसको बुला लेता है, ठीक है? और बुलाने के बाद उसको बोलता है कि आप अपना नंबर दीजिए, नंबर वेरीफाई करना है। एट दैट पॉइंट इन टाइम वो वो कॉल ऋषि को है, ऑलराइट? तो ऋषि वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद वो अनिल को काम डाउन करता है, वो बोलता है कि सर आप गुस्सा मत होइए, राहुल भैया से गलती हो गया वगैरह-वगैरह, ठीक है? और उसके बाद वो अनिल का नाम हटाता है वहाँ से और अपना नंबर भी हटा देता है वहाँ से, ठीक है? फिर वो अनिल के बैग में चुपके से ताज़ीन का फ्लाइट टिकट रख देता है। जब अनिल मेन मतलब फ्लाइट में उठने से पहले ही वो उस गेट के पास जाता है, ठीक है? वहाँ पे उसको एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। वो सिक्योरिटी गार्ड चेक कर ही रहा होता है अनिल को। वो देखता है कि अनिल के पॉकेट में ताज़ीन का फ्लाइट टिकट है।
ठीक है? तो वो पॉकेट से निकाल के ताज़ीन को वो फ्लाइट टिकट दे देता है। फिर अनिल बीइंग एंग्री, ठीक है? वो बैठ जाता है फ्लाइट के लिए और फिर ताज़ीन जो कुछ नहीं की होती है, वो भी फ्लाइट में बैठ जाती है। ये बात का कहानी है दैट हाउ शी विल मैनिपुलेट हिम एंड लाइक गेट ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस। सो अभी तक स्टोरी समझ में आया सबको? आई नीड अ हेड्स अप। Yes, go ahead. और बाकी सब कहाँ हैं? सब मर गए क्या? Yeah. अरे ये तो मेरा टीम का आतिक भैया, आतिक भैया बोलो। स्टोरी कैसा था? अच्छा था। अच्छा, कल कल वाले से बेहतर है ना? यस। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि कौन-कौन था और इसको टेक्निकल टर्मिनोलॉजी से मैप करने का कोशिश करते हैं। ठीक है? तो अनिल जो है वो हमारा प्रोसेस है, ठीक है? राहुल अटैकर है। ऋषि जो है वो पेलोड स्टब है, ठीक है? तुम्हारी वॉइस ब्रेक हो गई अंकिता, एक बार रिपीट करना वापस। हेलो, हेलो, अनिल प्रोसेस फ्रॉम देयर। अनिल या प्रोसेस गॉट या इट। तो वॉइस ब्रेक हो रहा है अंकिता। अच्छा, अच्छा, टेक्निकल पार्ट में ही ब्रेक हो रहा है। वॉव! तो अनिल जो है वो कौन है? वो हमारा प्रोसेस क्रिएशन है। अब सुनाई दे रहा है? हाँ, हाँ। ठीक है। सही है, सही चलिए बात करते हैं। तो अनिल जो है वो प्रोसेस है हमारा, ठीक है? वो प्रोसेस रिक्वेस्ट है एक्चुअली। उसके बाद राहुल जो है वो हमारा अटैकर है, ठीक है? ऋषि जो है वो है पेलोड स्टब और ताज़ीन जो है हमारी खूबसूरत सी लड़की, वो कौन है? वो हमारा मेन पेलोड है, ठीक है? जो सारा गड़बड़ करने वाली है। वाओ! तो अब हम लोग आते हैं कि अटैकर्स फ्लो में आते हैं। अरे आगे करना इसको। अरे रूडी भाई मर गया क्या? आगे कर इसको। अटैकर्स फ्लो में लेके जा। थोड़ी चेंज द स्लाइड। इसको हिंदी नहीं समझ में आता है। हाँ, तो यहाँ पे वेट अ सेकंड। ठीक है। सो व्हाट हैपेंस इन टेक्निकल टर्म्स आई विल एक्सप्लेन यू। ओके, तो बेसिकली कर्नेल मोड में सॉरी नॉट यूजर मोड में सबसे पहले हमारा रिक्वेस्ट आता है, ठीक है? और रिक्वेस्ट कौन भेजता है? अटैकर भेजता है। द अटैकर क्रिएट्स अ न्यू लेजिटिमेट प्रोसेस बट कीप इट्स इनिशियल थ्रेड सस्पेंडेड, ठीक है? तो ये वाला याद है? वो राहुल जो गया था वहाँ पे वो बोल के रखा था, गेट बंद करके रखना, ठीक है? और वो फिर 3 काम करता है। तो ये वही सस्पेंडेड स्टेट है। जैसे हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बताते हैं, यूज़र मोड में जब मेन थ्रेड बन जाता है ना कर्नेल मोड में 1 मिनट मेरे को स्क्रीन शेयर करने दो, नहीं ऐसे नहीं समझ में आएगा। हो गया भाई। हाँ, तो दिख रहा है सबको? हेलो, हेलो, क्या यार? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आता है यूज़र मोड में, ठीक है? कर्नेल मोड में हमारा इनिशियल थ्रेड बनता है और यूज़र मोड में हमारा इनिशियल थ्रेड इनिशियलाइज़ होता मतलब यूज़र मोड में मतलब इनिशियलाइज़ होता है हमारा इनिशियल थ्रेड, ठीक है? तो वो कौन करता है? वो एलडीआर इनिशियलाइज़ थंग फंक्शन करता है। वो डीएलएल लोड करता है, इंपोर्ट्स रिज़ॉल्व करता है, डीएलएल मैप करता है, ठीक है? लेकिन अटैकर क्या किया? अटैकर क्रिएट सस्पेंड यूज़ किया है, ठीक है? क्रिएट सस्पेंड बूलियन फ्लैग इन द क्रिएट प्रोसेस एपीआई। बिकॉज़ ऑफ दैट व्हाट हैज़ हैपेंड, यहाँ पे ना वो ये ठीक इस जगह पे आके वो रुक गया है। मतलब वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है एलडीआर इनिशियलाइज़ थंग को और ये बहुत शॉर्ट गैप है एक्चुअली में, टू बी प्रिसाइज़। दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट गैप, ठीक है? इस
शॉर्ट गैप के बीच में ना अटैकर 3 काम करता है। वो पहले मेमोरी में जाके 2 पेलोड लिखता है। एक पेलोड स्टब हो गया, ठीक है? और एक आपका है मेन पेलोड। उसके बाद वो कॉल बैक पॉइंटर जो है ना, कॉल बैक पॉइंटर याद है दिखाए थे, कहाँ गया? ये पॉइंटर वैल्यू एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट नल या इनएक्टिव रहता है। इसका कोई काम नहीं रहता है। लेकिन वो क्या करता है, इस पॉइंटर वैल्यू का जो एड्रेस रहता है उसको ओवरराइट कर देता है और यहाँ पे किसका एड्रेस डालता है? वो पेलोड स्टब का एड्रेस डालता है। ठीक है? पेलोड स्टब का जब एड्रेस डालता है, एड्रेस डालने के बाद आ गया भाई। हाँ, पेलोड स्टब का जब एड्रेस डालता है, ठीक है? तो डालने के बाद फिर पता है क्या होता है? वो शिम ब्रांच जो है, शिम्स एनेबल्ड बूलियन फ्लैग जो है, उसको वो 0 से 1 कर देता है। अब गेट खुलता है, ठीक है? When I said ना that after half an hour Anil reaches, this is the exact time when the process can access the LDR initialize thumb function. Okay? और जब ये इसको एक्सेस करता है, now it is forced to take the shim branch. Okay? What is the shim branch? रूडी, थोड़ा सा पीछे जाना, पेछोने जाना भाई। हाँ, it is forced to take the shim branch. Okay. Now what happens? Why it takes the shim branch? क्योंकि यहाँ पे ही वो कॉल बैक पॉइंटर अवेलेबल है। ये कॉल बैक पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है? पेलोड स्टब जो है ना उसको पॉइंट कर रहा है। Now you must understand this very easily that प्रोसेस क्रिएशन ये पाथ ले या ये पाथ ले, एट द एंड इट विल रीच द प्रोग्राम्स एंट्री पॉइंट। ठीक है? प्रोग्राम के मेन मेथड में वो पहुंचेगा ही। तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो जब यहाँ पे आता है ना तो पेलोड स्टब को टारगेट कर रहा होता है और पेलोड स्टब एग्जीक्यूट कर जाता है। वंस द पेलोड स्टब गेट एग्जीक्यूटेड, ओके, इट मेक्स श्योर दैट अरेंजेस फॉर द मेन पेलोड। ये पेलोड स्टब कौन है पता है? ये ऋषि है। It is actually arranging the environment for the main payload to run in. What the payload stub does, it clears all the shim related changes. ठीक है? वो shim जो 1 में सेट था वो उसको वापस से डिफॉल्ट वैल्यू में सेट करता है और खुद के थ्रेड में फिर वो खुद के थ्रेड में एक एपीसी क्यू कर लेता है। यहीं पे आता है इंट्रा एपीसी क्यू का कॉन्सेप्ट। ठीक है? हम लोग इतना देर से जब डीएलएल कर रहे थे, जब अर्ली बर्ड किए तो हम लोग वहां पे देख रहे थे दूसरे प्रोसेस से हम लोग को आके करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे खुद के थ्रेड में ही एपीसी हम लोग क्यू कर रहे हैं। ठीक है? इन द एंड एंटी टेस्ट अलर्ट का तो काम हम लोग सबको पता है। वो क्या करता है? वो चेक करता है कि कोई एपीसी क्यूड है या नहीं है। ठीक है? तो वो देखेगा कि अरे ये एपीसी तो बच गया है। वो एपीसी को बस रन करेगा और उसके बाद एंटी रन करेगा तो मेन पेलोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद एंटी कंटिन्यू से द कंट्रोल विल बी शिफ्टेड टू द प्रोग्राम्स एंट्री पॉइंट। हमारे दिमाग में अभी बहुत सारा सवाल आ सकता है कि वो उसको 0 से 1 वापस क्यों करता है? किस लिए करता है? देखिए, अगर सारा डीएलएल ये वाला पाथ लेने लगे ना, दिस ट्रू पाथ, तो फिर ना क्रैश हो जाएगा सिस्टम। ठीक है? तो इसीलिए हम लोग उस क्रैश को बचाने के लिए हम लोग उसको ऑफ कर देते हैं। एंड यू मस्ट रिमेंबर दिस इज़ अ वेरी दिस यूजर मोड में ये सब हो रहा है। ठीक है? मतलब ईडीआर हुक्स जो एलडीआर इनिशियलाइज में बहुत मतलब प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है? उसके पहले ही एमआर डेटा सेक्शन प्रेजेंट है। कॉल ग्राफ में मैंने दिखाया भी था। कॉल ग्राफ में जा रूडी, कॉल ग्राफ पे जा एक टू एलडीआर इनिशियलाइज कॉल ग्राफ पेছনে आ जाए, পেছনে হ্যাঁ এটা এটা। ठीक है? तो आप देख सकते हो कि एक्चुअली एमआर डेटा सेक्शन सबसे पहले है और ईडीआर हुक्स जो रहते हैं ना वो इसके बाद रहते हैं। तो इसीलिए पकड़ना बहुत मुश्किल होता है अटैकर को। ठीक है? एंड दैट्स व्हाई अर्ली कैस्केड इंजेक्शन इज अ वेरी स्टेल्थी इंजेक्शन एंड अभी तक nobody has found out a way to like defend the system. So yeah, with that I end early cascade injection and I move
my presentation towards Atik Bhaiya, who will explain the further things. So yeah, Atik Bhaiya. Yeah, good evening. I hope I'm audible. Yes, you are. Yes, you are. Okay, so we got to learn a lot of things and to keep it in a simplified manner. 3 फेज में होता है ये काम। पहले सस्पेंडेड प्रोसेस जो क्रिएट कर रहे हैं, देन द कैस्केडिंग, इसके अंदर सब कुछ आ जाता है आपका। स्टब आ जाता है, पेलोड आ जाता है, सिम्स पाथ आ जाता है, अब उसको ऑन ऑफ करते हैं। एंड वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगा कि एक क्वेश्चन भी आ सकता है आपका कि सिम्स इंजन को ये बार-बार बंद चालू क्यों कर रहे हैं? लाइक व्हाई इट्स गोइंग फ्रॉम 0 टू 1 अगेन 1 से 0 कर दें। सो बाय डिफॉल्ट सिम्स इंजन जो है इट हैज़ गॉट मल्टीपल पैरामीटर्स। अब मल्टीपल पैरामीटर्स जब है, सो ऑल द पैरामीटर्स शुड हैव अ वैल्यू and the first parameter is the GPFNSE function. So हम लोग का काम उसी से है। So जब पहला पैरामीटर चेक करता है कि हाँ GPNFSE फंक्शन है, so उसका जब काम हो जाता है, after that we turn off the Sims engine in order to avoid any sort of crash, क्योंकि बाकी जब जो सब पैरामीटर्स है उसमें अगर नल वैल्यू रहा तो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। सो हम लोग जो जरूरत है उसको लेके हम लोग सिम्स इंजन को बंद कर देते हैं। अब लास्ट में जो स्टब है उसे वी एग्जीक्यूट इट एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। चेंज द स्लाइड प्लीज। हाँ, सो प्रीवियसली वी हैड अ रियली डीप डाइव इन द अर्ली बर्ड एपीसी। पिछले सेशन में किए थे हम एंड दिस टाइम वी केम अप विद द अर्ली कैस्केड इंजेक्शन। सो अर्ली बर्ड में क्या होता था, जो अटैकर्स थ्रेड था वहां से हम लोग एक तो क्रॉस एपीसी क्यू करते थे टारगेट। सो सिंस एक एक्सटर्नल थ्रेड क्यू होता था, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मीडिया जो है एक्सटर्नली अगर कुछ हो रहा है, सो अ फ्लैग वो करने का चांस काफी बढ़ जाता है। सो बाहर से अगर कुछ हम लोग कर रहे हैं एंड अर्ली कैस्केड में क्या होता है, वी डू इट इंटरनली। लाइक पता भी नहीं चलेगा कि बाहर से अगर इंट्रूडर कुछ आया तो आया ही नहीं ना, पहला बात वी आर क्यूइंग इट विद इन द सेम थ्रेड इटसेल्फ। सो इसी वजह से इट इज मोर एडवांस एंड टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट, अर्ली बर्ड एपीसी वाज फाउंड बाय साइबरबिट इन 2018। 2018 का ये एंड अर्ली कैस्केड इंजेक्शन इट इज अ नोवेल वन। इट वाज फाउंडेड इन नॉट इवन फाउंडेड, ये एक नोवेल अप्रोच दिया गया था इन 2024। सो ये दिस इज द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ एपीसी इंजेक्शन टिल डेट। सो इसमें ये इसलिए इतना एडवांस है। नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, सो और एक क्वेश्चन आता है कि पेलोड स्टब तो है ठीक है, अलग से फिर मेन पेलोड क्यों आता है? व्हाई कांट वी जस्ट एक ही बार में पेलोड को एग्जीक्यूट कर दे इनिशियल फेज में? सो हम लोग फेज के बारे में सुने हैं ये फ्रेज, टू गुड टू बी ट्रू, या है टू अर्ली टू बी ट्रू। द थिंग दैट हैपेंस इज आप जब कोई हाँ, सो उसके लिए एक इन्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है, दैट इज द मोस्ट बेसिक तुम्हारी वॉइस रिक्वायर्ड। ब्रेक हो गई। हेलो, हेलो। हाँ हाँ, तुम्हारी मैं वॉइस ब्रेक हो गई जस्ट अ सेकंड। हाँ, शुड आई रिपीट? कहाँ से बोल रहा हूँ? मे बी फ्रॉम माय साइड। नहीं, जस्ट अ सेकंड। Okay, okay. What about others? Can you all hear me? हाँ भैया। अच्छा, একটু आगे ब्रेक हो जाएगा। ओके ओके, इट वाज फ्रॉम माय साइड। पहले भी हुआ था थोड़ा, फिर वापस हुआ मुझे लगा शायद। ठीक है, कंटिन्यू अच्छा, करो। okay, okay. So यहाँ पे once you try to run a program, रन करने के लिए एक environment का जरूरत पड़ता है। There is a one most basic DLL is the kernel 32 DLL. वो जब तक लोड नहीं होगा आपका मतलब वो प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होगा रन करने का। एंड यू नो द इंटरेस्टिंग थिंग, जो सबसे बेसिक डीएलएल है, जो डिपेंडेंसी लोड होता है ना कंप्यूटर में प्रोग्राम रन करने के लिए, ये उसके पहले सब अपना सेटअप करके बैठ गया है। सो अब एक तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कॉलेज 10 बजे से है, 9 बजे गेट खुल जाता है। अब मैं 8 बजे आके वहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं क्लास तो कर नहीं सकता ना वेट करना पड़ेगा गेट कब खुलेगा, फिर उसके बाद टीचर्स कब आएंगे, क्लास होगा। पहले तो आई कैन डू एनीथिंग क्योंकि वो तो विंडोज के पहले में आ गया, आई एम टू एडवांस फॉर दिस, इसलिए। सो वहाँ पे अब रन अगर कर दिया पूरा मेन पेलोड,
पहला तो बात रन नहीं करेगा, उल्टा क्रैश कर जाएगा क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है. So that's the reason. Hope you got it. And now moving on to the next slide. Here you can see one thing. The call graph. I've done the markings here that there should be 3 EDR hooks. One is at the kernel 32 DLL. पहला वहीं पे load होता है. वो By the way, सीधा like, can you explain this EDR hook a little bit? Like you guys are talking about EDR hook, but like, it would be हाँ better तो if you first explain what EDR hooks are. Hmm. ADR hooks basically आप normally कोई भी आप प्रोसेस रन करते हो, जैसे आपने डीएलएल पढ़ाया था, तो उसमें क्या कर रहे हैं आप, रिमोट प्रोसेस जब क्रिएट कर रहे हैं तब वो विंडोज का जो डिफेंस सिस्टम है, इट गिव्स अ फ्लैग्स ना कि हाँ एक रिमोट प्रोसेस क्रिएट हो रहा है. सो इट हुक नथिंग बट द सिक्योरिटी हुक्स गिवन बाय डिफॉल्ट बाय द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. वो चेक करता है कि मतलब कुछ अगर गड़बड़ी हो रहा है तो वो पहले से वार्न करता है यूजर को. तो वो स्टार्ट हो जाता है. इट्स लाइक द सिक्योरिटी ऑफ द विंडोज बचाने के लिए, वरना तो हार्मफुल चीजें रन कर जाएगी ना सिस्टम पे. सो वो रन करने के लिए भी क्राइटेरिया होता है कि जब रिसोर्सेज लोड होना स्टार्ट होते हैं देन ओनली दे गेट एक्टिवेटेड. एंड यहाँ पे पहला एक्टिवेशन जो होता है, पहला हुक, इट्स इन द कर्नल 32 DLL. एंड वहाँ पे पहला होता है, देन LDRP लोड उसमें दूसरा वाला होता है. एंड वन मोर इज देयर, दैट इज ओके रूडी गो टू द बॉटम में बिट, ZW कंटिन्यू भी होगा. हाँ, तो यहाँ पे जब द मेन मेन जो हम लोग का मोटिव था, जो सपोज एक ऐप चलाने वाले थे, वो ऐप को जब रन करते हैं ना, सो यहीं पे रन होता है. ये जब फंक्शन आ जाता है ZW कंटिन्यू, उसके बाद वो ऐप रन हो जाता है. इसमें लास्ट EDR हुक रन करते हैं. अब इसमें आपने देखा कि 3 EDR हुक है, लेकिन सबसे EDR हुक जो वन है, द फर्स्ट वन जो आता है विच कम्स इनटू प्ले, उसके पहले ही हम लोग का सब इनिशियलाइजेशन में काम हो चुका है. वी हैव ऑलरेडी डन मोस्ट ऑफ द थिंग्स. जस्ट वी आर वेटिंग फॉर द एंटी टेस्ट अलर्ट, क्योंकि वहां पे क्यू होके बैठा हुआ है. लाइक आई एम वेटिंग आउटसाइड द कॉलेज, एंड जैसे गेट खुलेगा मैं अंदर चले जाऊंगा. एंड गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, सो वही वट एवर आई टॉक्ट अबाउट वही स्लाइड में दिया हुआ है. वी क्रिएटेड द प्रोसेस, सीम्स इंजन को मैनिपुलेट किए, पेलोड स्टब जो है एक्स एज अ ट्रिगर, वो इंटर एपीसी क्यू कर दिया, एंड द मेन पेलोड रन किया, एंड कैस्केड कंप्लीट हो गया. उसके बाद आता है हिल्टे डुल्टे EDR हुक्स. वो कर्नल 32 में आया, फिर LTRP में आया, एंड देन ZW कंटिन्यू में. बट आगे क्या फायदा, वो तो उसका पहले ही हम लोग काम कर चुके हैं. सो दैट्स अबाउट अर्ली कैस्केड इंजेक्शन. एंड बाय दिस वी रैप अप द प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू. लाइक शेयर कर दीजिए. Hmm. Okay, nice. आज लाइक तुम लोगों ने मतलब थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट चूज किया. लाइक पता नहीं क्यों, बट लाइक देयर आर लॉट ऑफ मिसिंग पीसेस राइट नाउ. तुम लोग तो प्रैक्टिकली ट्राई किया. प्रैक्टिकली सोचे हैं, बट जो रिसर्च मतलब ये जो अप्रोच आया है ना, सो जो अप्रोच किया है वो खुद ही नहीं मतलब अभी तक कर पाया है. मतलब उसके पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. सो जस्ट अ नोवेल अप्रोच एज आई सी. ये दिस इज अ अप्रोच हम्म. करना पड़ेगा. नो, पहले मैंने भी पहली बार सुना इसके बारे में. हाँ, मेल राइट. फैक्स, मेल फैक्स, डू यू नो अबाउट दिस कैस्केड इंजेक्शन? मेल फैक्स को शायद पता हो. हेलो. Oh, हेलो. हेलो. no,